ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ گاؤں میں تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتا یہاں سے وہاں پھر رہا تھا۔ سڑکوں پر اڑتی دھول ارد گرد لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ گاڑی کی تیز رفتاری سے چلانے کی وجہ سے بے چینی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ وہ بے انتہا غصے میں جیسے ہر چیز کو کچل دینا چاہتا تھا۔ شاویز عالمگیر یوں ہی ہر شے کو دھول کی طرح ہوا میں اڑانے کا ہنر جانتا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ گاؤں کی کچی سڑکیں اس کی شاندار گاڑی کا بوجھ اٹھانے کے قابل تھیں یا نہیں۔ وہ سڑک پر سے گزرتے راہگیروں کو اپنی جوتی کی نوک سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ارد گرد کے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ گاڑی میں سوار شخص کے تیور کس حد تک خطرناک تھے۔ وہ اس کی ٹکر سے بچنے کے لیے خود ہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مرغیوں سمیت دیگر جانور کب کے میدان میں اتر کر دوسری جانب ہو چکے تھے۔ قریبی سڑک سے گزرتی مدیحہ نے ایک ناگوار نظر تیز رفتار گاڑی پر ڈالی۔ پتہ نہیں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ وہ بیزاری سے بولی تو شائستہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ملک تو دور کی بات، یہ تو قلعہ فتح کرنے کا ہنر نہیں رکھتے، بس اپنے باپ دادا کی دولت پر عیش کرنا جانتے ہیں۔ ان دونوں کو تو کیا، گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی شاویز عالمگیر کے بارے میں یہی رائے تھی، مگر گاؤں والوں کی اور ان کی سوچ کہ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ غصے سے گاڑی حویلی میں لایا اور ٹھوکر مار کر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اس کا رخ زنان خانے کی جانب تھا۔ میں تایا جی کے فیصلے کو بالکل نہیں مانتا، وہ اماں بی کو دیکھ کر گرج کر بولا۔ وہ ہوتے کون ہیں میری غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے؟ اس کو تایا جی کا فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر ہی اس کی بچپن کی منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ بھی تایازاد شائستہ کو کچھ خاص نہیں چاہتا تھا اور شاید وہ یہ رشتہ خود ہی ختم کر دیتا، مگر تایا جی نے خود سے یہ فیصلہ لے کر اس کی انا پر ضرب لگائی تھی۔ اماں بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اماں بھی کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ ان کے قریب جا کر بولا، شاویز عالمگیر، تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں اس لہجے کی عادت نہیں۔ اگر ہم سے بات کر رہے ہو تو لہجہ دھیما رکھو۔ وہ سرد اور سخت لہجے میں بولی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اسے فوراً ہی اپنے لہجے کی بلندی کا احساس ہوا تھا۔ واقعی وہ ہوتا کون تھا بی اماں سے اس لہجے میں سوال جواب کرنے والا؟ وہ فوراً شرمندہ ہوا۔ معذرت چاہتا ہوں بی اماں، میں بے انتہا غصے میں تھا۔ اس نے فوراً معافی مانگی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، مگر یہ اچھی عادت تھی کہ اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لیا کرتا۔ اپنا غصہ حویلی کی چار دیواری کے پار چھوڑ کر آیا کرو شاویز، اور یہ فیصلہ تمہارے تایا نے نہیں بلکہ تمہارے باپ نے کیا ہے۔ جاؤ جا کر اس کا گریبان پکڑو۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر اٹھ کر چل دی۔ یہ واضح ثبوت تھا کہ وہ اس سے بھی ناراض تھی۔ وہ چپ چاپ باہر چلا آیا۔ غصے کے ساتھ ساتھ اب افسوس بھی تھا۔ بابا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اس کو اس فیصلے میں شامل کیے اور اس کی مرضی جانے بغیر۔ مجھے اب بابا سے بات کرنی ہوگی۔ وہ پختہ ارادہ کرتا ایک بار پھر گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ شاویز عالمگیر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دولت کی ریل پیل نے اسے مغرور اور بدتمیز بنا دیا تھا۔ اس کا باپ عالمگیر خان زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ کئی سال لگا کر اس نے بڑی محنت مشقت سے سیاست میں اپنا لوہا چمکایا تھا۔ شاویز عالمگیر کو نہ تو اپنے باپ میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کی سیاست میں۔ وجہ اس کی ماں اور باپ کی علیحدگی تھی۔ وہ چھوٹا سا تھا جب خاندانی لڑائیوں اور جھگڑوں کے بعد اس کے ماں باپ نے الگ ہونے کا فیصلہ لے لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل قصوروار کون تھا، مگر اس کی نظر میں وہ دونوں ہی قصوروار تھے، کیونکہ ان کے اس علیحدگی کے فیصلے نے اس کی زندگی پر بے انتہا
منفی اثرات مرتب کیے تھے۔ اس کی ماں اور باپ دونوں ہی اس کی محبت کا دم بھرتے۔ اس کے ابا زیادہ تر وقت اپنے شہر والے گھر میں گزارتے تھے اور اس کی ماں اسی شہر میں اپنے ماں باپ کے گھر رہا کرتی۔ وہ کبھی ماں سے ملنے چلا جاتا اور کبھی باپ کے پاس جا کر کچھ دن گزار لیتا، ورنہ وہ زیادہ تر وقت اپنی گاؤں کی حویلی میں گزارتا۔ وہیں اس کا زیادہ بچپن گزرا تھا۔ ماں باپ کی علیحدگی کے بعد اسے اس کی دادی اماں نے ہی سنبھالا تھا۔ وہ اس کا خیال کرتی اور اسے پیار سے سمجھاتی کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ ان کا الگ ہونا ہی بہتر تھا۔ محبت کی شادی اتنا عرصہ ہی چلا کرتی ہے۔ میں نے تو بہت منع کیا تھا تمہارے باپ کو، مگر اس پر تو عشق کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ پورے خاندان سے لڑ کر اپنی مرضی سے غیر خاندان کی عورت بیاہ کر لے آیا۔ اس کی دادی اپنے ہی شکوے لے کر بیٹھ جاتی تو وہ برا سا منہ بنا کر اٹھ جاتا۔ ان دونوں کی محبت اور پھر دشمنی نے دونوں کو ہی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ غصے، نفرت اور بیزاری سے بھرا رہتا۔ اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے باپ نے اسے سیاست میں قدم رکھنے کا مشورہ دیا۔ کیا بات کر رہے ہیں بابا؟ میرا سیاست سے کیا تعلق؟ میں سیدھی سادی گیم کھیلنے کا عادی ہوں۔ یہ گھما پھرا کر وار مجھ سے نہیں ہوتے۔ مجھے تو آپ کوئی اور کام بتا دیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیزاری سے بولا تو اس کے باپ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم گاؤں سے باہر نکلنے والے نہیں، وہی تمہارا کمفرٹ زون ہے۔ ایسا کرو، گاؤں کی زمینوں کا حساب کتاب رکھو، اور وہ ہزارہ والی جو بڑی سڑک ہے اس میں پلازا بنانے کا کام شروع کر رہا ہوں، تم اس کی نگرانی کرو۔ انہوں نے اسے فوراً دوسرا کام بتایا تو وہ مان گیا۔ دیکھ بھال اور نگرانی کرنا زیادہ آسان تھا۔ ملازموں پر حکم چلانا تو وہ خوب جانتا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کر سکتا تھا۔ زمینوں اور پلازا کی نگرانی کرنے میں اس کا آنا جانا بھی لگا رہتا۔ تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو تم شادی کر لو، ماں نے اسے الگ ہی مشورہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر ماں کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ ان کی آنکھوں میں گہری نظر ڈال کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ ہر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، شادی میں کیا برائی ہے بھلا؟ اور تم جو یوں دیواروں سے بھی لڑتے پھرتے ہو نا، بالکل سیدھے ہو جاؤ گے۔ وہ یقیناً اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ بابا، اور آپ نے شادی کا جو سبق میرے سامنے پیش کیا ہے نا، اس کے بعد تو میں کبھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تو زبیدہ خاتون چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اتنے برس گزرنے کے باوجود بھی وہ اس بات کو نہ تو تسلیم کر پایا اور نہ اس کا غصہ کم ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اپنی ضد، انا، آزادی اور خوشیوں کو اس پر فوقیت دی تھی، ورنہ اس کی خاطر اتنی سی قربانی دے ہی سکتے تھے کہ اختلافات ختم کر کے ایک چھت تلے باقی کے سال گزار لیتے۔ بابا، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر زمین کا کچھ حصہ ہمیں خریدنا پڑے گا۔ وہ باپ کے سامنے پورا پلان لے کر حاضر تھا۔ اس کی اپنی دلچسپی اس پروجیکٹ میں کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس نے پلازا کا کچھ نقشہ بدل کر اپنے خیالات باپ کو بتائے تو وہ حیران رہ گئے۔ ارے واہ، یہ تو بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں اس منصوبے کے لیے چنا۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم اس منصوبے کو بڑے اچھے سے پایہ تکمیل تک پہنچاؤ گے۔ وہ خوش ہوتے بولے تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ بابا، پھر ہم ارد گرد کی زمین بھی خرید لیتے ہیں۔ اس نے اجازت چاہی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں ہاں، جو خریدنا ہے خریدو۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ دیکھتے بولے۔ وہ حویلی آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے مینیجر کو ارد گرد کی اراضی خریدنے کا حکم دیا۔ وہ دور دور تک پھیلی زمینوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کی زمین ہمارے لیے کافی ہوگی۔ اس نے مینیجر کو اچھی طرح سمجھایا اور زمین مالکان کو منہ مانگی قیمت دینے کا حکم صادر کر دیا۔ صاحب جی، باقی زمین تو خرید لی گئی ہے، مگر شمالی جانب کا ایک ٹکڑا نہیں مل پایا۔ 2 دن بعد ملازم نے اسے اطلاع دی تو وہ چونک گیا۔
बीच में सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होगा तो प्लाजा कैसे बनेगा? जाओ जाकर पता करो किसकी जमीन है। उसने मुलाजिम की बेवकूफ़ी पर माथा पीटा था। ये बात नहीं साहब, मालिक का तो पता मालूम है, पर वो जमीन बेचना नहीं चाहते। तुमने मुंह मांगी रकम की बात की थी। जी साहब, पर उन्हें रकम नहीं चाहिए। मुलाजिम की बात पर वो हैरत से उठ खड़ा हुआ। उसने आज तक कभी किसी को पैसों के लिए मना करते नहीं सुना था। न जाने कौन मालिक था इस जमीन का जो मुंह मांगी कीमत लेने को भी तैयार नहीं था। चलो मैं खुद जाकर देख लूंगा, तुम कागजी कार्रवाई शुरू करो। वो मुलाजिम को तसल्ली देता हुआ वहां से चल दिया। दरवाजे पर दस्तक देकर वो बेजारी से खड़ा था। दरवाज़ा खुलने में न जाने इतनी देर क्यों लग रही थी, वो समझने से कासिर था। उसके मुलाजिम कुछ दूर खड़े एक इशारे के मुंतज़िर थे। अगर वो उन्हें कहता तो वो अभी आकर ठोकरों से दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर जाने का रास्ता बना लेते, मगर वो इतनी जल्दी अपनी असलियत दिखाना नहीं चाहता था। उसका इरादा ये था कि पहले उस आदमी से आराम से बात करे। अगर वो ना माना तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करना उसे बखूबी आता था। हाँफते कांपते बूढ़े को आते देखकर वो देरी की वजह समझ गया। वो बमुश्किल चलकर दरवाजे तक आया था। मैं शावेज आलमगीर खान का बेटा हूं। उसने फौरन अपना तारुफ करवाया। हजारा के अतराफ की अराजी आपकी है, मैं वो खरीदना चाहता हूं। वो फौरन काम की बात पर आया। नहीं, वो मेरे बेटे की है, मगर वो बेचना नहीं चाहता। उस जमीन से हमारी बहुत वाबस्तगी है, हमने वहां बहुत कुछ बो रखा है। वो भी सीधी बात पर आया तो शावेज आलमगीर ने एक ठंडी सांस भरी। मुझे वो जमीन हर कीमत पर खरीदनी है। आप बताएंगे क्या कीमत लगाएंगे उस जमीन की? वो बेसब्री से लहजे को मजबूत करता बोला। तो वो बूढ़े आदमी ने एक गहरी नजर उस पर डालकर पीछे खड़ी उसकी सिक्योरिटी पर नजर डाली। हर चीज बिकाऊ नहीं होती शावेज साहब, वो धीमे लहजे में कहता वापसी के लिए मुड़ा। दम खम है नहीं और तेवर देखो जरा बुड्ढे के। वो बड़बड़ाता हुआ वापस मुड़ा। इनकार सुनने की उसे आदत कहाँ थी? अब तो जमीन उसकी जिद बन चुकी थी। वो खुद चल कर आया था, फिर भी उसे इनकार सुनने को मिला। उसकी अना पर गहरी चोट लगी थी। लगता है घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, उंगलियां मरोड़ो या तोड़ो, मुझे घी निकाल कर दो। उसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया और चलता बना। जी, मुझे शावेज आलमगीर से मिलना है। निस्वानी आवाज पर उसने पलट कर देखा। सफ़ेद दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो खुद किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत थी कि एक लम्हे को वो भी साकित रह गया। अगले ही पल उसने अपना सर झटका और खुद को उसके ख्याल से आज़ाद किया। मुलाजिम ने फौरन निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा तो वो फौरन दरख्त की ओट में हो गया। वो लॉन में ही टहल रहा था जब वो लड़की उससे मिलने चली आई। आपको क्या काम है साहब से? उसके इशारे पर नौकर ने उस लड़की के आने का मकसद जानना चाहा। उनके आदमी हमें मुसलसल कई दिनों से तंग कर रहे हैं, जबकि हम जमीन बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। आप मेरा पैगाम अपने साहब को पहुंचा देना कि हमारा और हमारी जमीन का पीछा छोड़ दें। वो तेज लहजे में बोली तो शावेज आलमगीर के जैसे दिल पर छुरियां चल गईं, यानी कि घी टेढ़ी उंगलियों से भी निकलने को तैयार नहीं था। उस लड़की के मजबूत और सख्त लहजे पर लम्हा भर को वो भी परेशान हो गया। ठीक है, तुम उसको चलता करो। उसने मुलाजिम को इशारा किया। साहब आएंगे तो आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। साहब को कहना खुद सामने आकर बात करें और अपने मुलाजमों को लगामे डालें। वो उंगली उठाकर तंबीह करती वापस पलटी। वो तो दरख्त की ओट से निकल आया। वो इस लड़की की जुर्रत पर हैरान था जो उसके मुलाजिम के सामने उसकी हवेली में आकर इसको धमकी देकर चलती बनी थी। एक किसान की बेटी होकर इतना इतरा रही है। भाड़ में जाए ये और इसकी जमीन। उसने गुस्से में दरख्त पर मुक्का दे मारा। एक जमीन के टुकड़े के बगैर भी प्लाजा मुकम्मल हो ही जाएगा।
उसने सोचा, मगर बाबा को तो वो पहले ही कह बैठा था कि सारी ज़मीन खरीदी जा चुकी है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि एक टुकड़े के लिए उसे इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। लड़की काफ़ी टेढ़ी लग रही थी। उसको डरा धमकाकर मनाना इतना आसान नहीं था। उसके जहन में कोई ख्याल आ रहा था कि कैसे वो ज़मीन हासिल करे। वो मुंह मांगी कीमत देने तक को तैयार था, मगर अजीब ढीठ लोग थे कि ज़मीन बेचने को तैयार नहीं थे। वो सोचों में गुम अंदर की जानिब बढ़ गया। वो बेइंतहा गुस्से में दनदनाता हुआ बाप के सर पर पहुंचा। आपने मेरी बचपन की मंगनी कैसे ख़त्म कर दी, मुझसे पूछे बगैर? उसे कल ही इस मामले की भिनक पड़ी थी। उसका गुस्सा इंतहा पर था। न जाने मुझे समझ क्या रखा है, प्लास्टिक का गुड्डा हूं क्या? वो तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाता शहर आया था। उसके सवाल के जवाब में बाप ने हैरत से उसके चेहरे पर निगाह डाली। पहले तो तुम कहते थे कि मुझसे पूछे बगैर मंगनी कर दी, और अब इस बात पर चराग पा हो कि तुमसे पूछे बगैर मंगनी खत्म कर दी। तुम आखिर चाहते क्या हो? उन्होंने घूर कर इसे देखा तो वो नजरें चुरा गया। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो क्या चाहता था। न जाने उसे हर बात पर इतना गुस्सा क्यों आता था। हाँ, तो आपने ही फैसला किया था। मंगनी करने से पहले मुझसे पूछा, न खत्म करने से पहले मुझसे पूछा। जब मेरी जिंदगी का फैसला है तो मेरी मर्जी होनी चाहिए। उसे इस बात पर गुस्सा था कि बाप ने कभी उसकी मर्जी जानने की कोशिश ना की थी। वो अपना हर फैसला इस पर यूं ही मुसल्लत कर दिया करते थे। जब उन दोनों ने अलैदगी इख्तियार करने का फैसला किया था, तब भी उसे गैरों की तरह बता दिया गया था कि हमने ये फैसला किया है। उसकी राय, रजामंदी, मर्जी, ख्वाहिश कुछ भी तो ना जानना चाहा था। मेरी बात सुनो शाहवेज आलमगीर, उसे सोचों में डूबा देखकर बाप ने उसे पुकारा। तुमने कई मर्तबा ये डंगे की चोट पर ऐलान किया था कि तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो और ना कभी खुश रह सकते हो। यही मुनासिब था तुम्हारे लिए और शाइस्ता के लिए। तुम ही तो कहते थे कि हमारी गलती थी कि हमने छोटी उम्र में तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब हम अपनी गलती सुधारना चाह रहे हैं, तो तुम्हें क्या मसला है? अब की बार वो जिद होकर बोले तो वो चुप सा रह गया। बाबा, बात यह है कि आपने कभी मेरी ज़ात के मुतल्लिक सोचा नहीं कि मेरी भी कोई राय, कोई मर्जी है। बस मुझे हमेशा फैसला सुनाया गया। वो अपनी सोच को ज़बान दे गया। अरे यार, ये तुम्हारा ही तो फैसला है जो तुमने कई मर्तबा मुख्तलिफ तरीक़ों से हम तक पहुंचाया है। वो उसकी बात समझ ना पा रहे थे, या शायद वो समझा नहीं पा रहा था। वो गुस्से में मेज़ को ठोकर मारकर वापस पलट आया। बचपन से ये मंगनी उसके लिए अजाब थी। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बड़ों ने मिलकर तय कर रखा था, और उन जब बड़ों ने ही रिश्ता चुपचाप ख़त्म भी कर दिया, तब भी इसे सुकून नहीं आ रहा था। शायद इतने अरसे से शाइस्ता का नाम अपने साथ जुड़ा रहने की वजह से उसे भी आदत पड़ गई थी, उसके नाम की, उसके ख्याल की। क्या वो शाइस्ता को चाहने लगा था? उसने अपना दिल टटोलना चाहा। कहीं तो हलचल मची थी। वो हैरान होता चाबी उठाकर ताया के घर की जानिब भागा ताकि शाइस्ता के दिल के जज्बात जान सके। मंगनी तोड़ने के लिए बाबा को मैंने ही कहा था। उन्होंने चचा से बात की तो वो भी राजी थे, क्योंकि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शाइस्ता का जवाब सुनकर वो हैरान हुआ। तुमने मंगनी तोड़ने का कहा सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें लगा मैं खुश नहीं था? वो बमुश्किल बोला। नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं थी, बल्कि मैं किसी और में दिलचस्पी रखती हूं। असल वजह तो यही थी। वो लापरवाही से कहती सीधा उसके दिल पर वार कर गई। वो एकदम सीधा हुआ। किसको? तुम किसको पसंद करती हो? उसने हिम्मत करके पूछा तो शाइस्ता ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। शायद वो समझ नहीं पा रही थी कि शाहवेज आलमगीर ये सब क्यों जानना चाह रहा था। सिकंदर को। उसने अपने मामूजात का नाम लिया तो वो सदमे से पीछे हटा। वो कनाडा में रहने वाला सूखा सड़ा छुरेरे बदन वाला गोरा चिट्टा नौजवान।
जो पाकिस्तानी कम और अंग्रेज ज्यादा लगता है? शाहवेज आलमगीर को तो हमेशा लड़की की तरह लगता। उसकी बचपन की मंगेतर उस लड़की नुमा लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। वो कंधे पर पड़ी शॉल झाड़कर मूंछों को ताव देता उठ खड़ा हुआ। शाइस्ता ने उसका दिल बुरी तरह कुचला था। शाहवेज आलमगीर जैसे नौजवान पर उस शुतुरमुर्ग को फौकियत दे दी थी। वो तेजी से ताया के घर से बाहर निकला तो दरवाजे से दाखिल होते मदीहा को देखकर दंग रह गया। सफेद दुपट्टे के हाले में वो चांद का चेहरा पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। ये इस किसान की बेटी यहां क्या कर रही है? वो हैरान होता पोर्च में खड़ी गाड़ी की ओट में हुआ तो वो शाइस्ता को आवाजें देती अंदर बढ़ गई। वो सड़क पर गाड़ी दौड़ाते रवां दवां था। तभी उसे वो दिखाई दे गई जो सुनसान सड़क पर परेशानी से खड़ी इधर उधर देख रही थी। रिक्शे वाले ने धोखा नहीं दिया था। शाहवेज आलमगीर ने उसे शाइस्ता के घर के बाहर खड़े देखकर ही पैसे पकड़ा दिए थे कि वो इस लड़की को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। उसने वही किया था। शाहवेज आलमगीर ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसकी चाल कामयाब रही थी। उसने गाड़ी ऐन मदीहा के सामने ले जाकर रोकी। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। मदीहा ने हैरानी से उसे देखा। वो उसे पहचानती नहीं थी। न जाने कौन नौजवान था जो इतने बेतकल्लुफ अंदाज में उसे गाड़ी में बैठने की पेशकश कर रहा था। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आगे से कोई सवारी मिल जाएगी। अगर हो सके तो आप मेरे लिए कोई रिक्शा भिजवा दीजिएगा, उसने धीरे से कहा। तो शाहवेज आलमगीर का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। वो यहाँ सुनसान सड़क पर इस लड़की को लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था जबकि वो उसे रिक्शा लाने का कह रही थी। यहाँ से कोई सवारी नहीं मिलेगी, आप बैठ जाएं, मैं आपको छोड़ देता हूं। मुझ पर एतबार करें, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने दोबारा कोशिश की तो वो हैरान हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने लापरवाही से इसे टालने की कोशिश की थी। वो खुद भी जानती थी कि यहाँ से सवारी मिलना मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो उसने इसी रिक्शे वाले को घर के बाहर खड़ा किया था जिसमें वो बैठ कर आई थी। उसे क्या मालूम था कि वो उसे यूं बीच राह में उतार कर भाग जाएगा, वरना वो शाइस्ता के ड्राइवर के साथ ही वापसी का प्रोग्राम बना लेती। शाइस्ता तो उसको रोक भी रही थी, मगर वो सिर्फ रिक्शे वाले के ख्याल से वापस निकल आई कि वो ज्यादा देर इंतजार ना कर पाएगा। अब खुद बड़ी मुसीबत में फंसी खड़ी थी, मगर कैसे वो यूं किसी अजनबी की गाड़ी में बैठ जाती। मैं शाहवेज आलमगीर हूं, शाइस्ता का कज़न और उसका साबका मंगेतर भी, जिसने अभी कुछ अर्सा पहले ही मुझसे मंगनी तोड़कर अपने किसी कनाडा वाले कज़न को पसंद करके मेरा दिल पाश पाश कर दिया। वो ड्रामाई अंदाज में उदासी से बोला तो मदीहा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। शाइस्ता उसकी पक्की दोस्त थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में और अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उसको मालूम था कि वो किसको पसंद करती है। उसको ये भी मालूम था कि वो शाहवेज आलमगीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके मुताबिक वो उजड़, जाहिल, गंवार और न जाने क्या क्या था, लेकिन फिलहाल तो वो इसको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। लिफ्ट लेने में कोई मसला भी नहीं था, जबकि वो उसको जान भी गई थी। वो फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। आपका शुक्रिया, वो इतना ही कह पाई। शाहवेज आलम ने एक नज़र उस पर डालकर मुस्कुराहट के साथ गाड़ी चला दी। मुझे आपसे एक बात करनी थी, मदीहा ने टेढ़ी नज़रें शाहवेज आलमगीर पर डालते हुए कहा। इस वक्त उसका मूड खुशगवार लग रहा था, लिहाजा मदीहा ने मौका मुनासिब जानकर बात करने का फैसला किया। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूं। शाहवेज ने पूरी दिलचस्पी के साथ उसकी तरफ देखा। दरअसल हम अपनी ज़मीनें बेचना नहीं चाहते। वो ज़मीन अब्बा के साथ जुड़ी हुई है। वो बरसों से उस पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। उसका उस ज़मीन से इतना लगाव है कि वो उसे अपने बच्चे की तरह पाल कर बड़ा करते रहे हैं। इसीलिए वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं, चाहे कोई उसके बदले कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना दे दे। मदीहा ने तफसील से अपनी बात की तो शाहवेज ने संजीदगी से सर हिलाया।
हाँ, मैं समझ सकता हूँ, जमीन वाकई बहुत कीमती होती है, उसने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन हकीकत में वो मदीहा की बात पूरी तरह नहीं समझ पाया था। उसकी बात उसे बिल्कुल बचकाना लगी थी। लोग इंसानों को मरने के दूसरे दिन भुला देते हैं, इनको जमीन से लगाव है। वो तलखी से सोच रहा था, ताहम उस वक्त वो बहस के हक में नहीं था। फिक्र मत करें, हमें वो जमीन नहीं चाहिए, उसने मदीहा को मुतमईन करने की कोशिश की। मदीहा ने सुकून का एक गहरा सांस लिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तो वाकई बहुत अच्छे हैं। मदीहा के तारीफी अल्फाज सुनकर शाहवेज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, जिसे वो कमाल तेजी से छुपा गया। दिल ही दिल में उसे यकीन हो गया था कि शाइस्ता ने उसके बारे में मदीहा को कुछ न कुछ ज़रूर गलत बता रखा होगा। लेकिन मदीहा के दिल में अपने लिए नरम जज्बात उभारने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उसे अंदाज़ा हो गया था। आप इतनी दूर से अपनी दोस्त से मिलने आई थी? शाहवेज आलमगीर ने गाड़ी गांव की सड़क पर डालते पूछा तो मदीहा चौंक गई। नहीं, मैं माजरत ख्वाह हूँ, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी। मैं तो यहीं करीब हॉस्टल में रहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे वहीं छोड़ दें। शाहवेज ने फौरन गाड़ी बैक की और दूसरे रास्ते पर डाल दी। हॉस्टल में क्यों रहती हैं आप? वो सरसरी अंदाज में बोला। जी, मैं यहाँ पढ़ाई के लिए रहती हूँ। मैं और शाइस्ता दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं। शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर शाहवेज हैरान रह गया। उसे तवक्को नहीं थी कि एक किसान की बेटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम हो सकती है। यही बात शायद मदीहा के अंदर मौजूद एतमाद और मजबूती की वजह थी, वरना गांव की आम लड़कियां तो हवेली के माहौल में कदम रखने की भी जुर्रत ना रखती और ना ही किसी बात पर इनकार करने की हिम्मत करती। शाहवेज आलमगीर ने एक लम्हे के लिए मदीहा की तरफ देखा। ये लड़की वाकई उसके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा मजबूत और खुद मुख्तार थी, और यही बात उसे बेहद हैरान कर गई। शाहवेज मदीहा को हॉस्टल पहुंचाकर गांव की तरफ वापस रवाना हुआ। रास्ते भर उसके दिमाग में मदीहा के अल्फाज और अंदाज गर्दिश करते रहे। ये लड़की वाकई मुख्तलिफ थी। उसने शाहवेज को हैरान ज़रूर किया था, मगर वो इतना आसानी से अपने दिल को बेकाबू होने देने वाला शख्स नहीं था। मोहब्बत के बारे में उसके ख्यालात हमेशा सख्त और तल्ख रहे थे। वो यकीन रखता था कि मोहब्बत यूं ही किसी अचानक मुलाकात से नहीं हो जाती, बल्कि ये वक्त और कई पहलुओं को देखने के बाद परवान चढ़ती है। शाहवेज की नज़र में मोहब्बत हमेशा वही थी जो किसी के मयार, हैसियत और ख़ानदानी पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए होती थी। इसलिए शाइस्ता ने उस कैनेडियन प्लस लड़के के साथ मोहब्बत की कहानी शुरू की थी। शाइस्ता की मोहब्बत उसे एक मजाक लगी थी। शाइस्ता को शायद सिर्फ खूबसूरती और वक्ती कशिश की बुनियाद पर वो लड़का पसंद आया होगा, मगर मदीहा, ये लड़की उसके तसव्वुरात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो जहन में जगह बना चुकी थी, चाहे वो उसे कबूल करे या नहीं। उसने प्लाजा का काम ज़ोरों शोर से शुरू करवा दिया। मजदूरों की आवाज़ें और मशीनों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। ये प्रोजेक्ट उसके लिए ख्वाबों की ताबीर था, और उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। आलमगीर खान, उसके वालिद भी एक बार प्लाजे के काम का जायज़ा लेने आए थे। उन्होंने प्लाजे के मंसूबे को सराहा और कुछ हिदायत दी थी। शाहवेज ने उनसे ज़मीन के तनाज़े का कोई जिक्र नहीं किया। वो इस मामले को अपने तौर पर सुलझाना चाहता था। उसके जहन में एक वाज़ेहा मंसूबा था। इस ज़मीन का मसला तो बाद में भी सुलझाया जा सकता था। फिलहाल बुनियादी काम तो शुरू हो चुका था। उसे मदीहा की वापसी का शिद्दत से इंतज़ार था। वो जानता था कि वो यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में गांव ज़रूर आएगी। वो खुद भी यूनिवर्सिटी में रह चुका था और जानता था कि सेमेस्टर के अख्ताम पर छुट्टियां होती हैं। वैसे भी उनका गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मदीहा का गांव आना जाना लगा रहता था। दरवाजे पर दस्तक देकर वो कुछ देर इंतजार में खड़ा रहा
اسے معلوم تھا کہ یہ دروازہ کچھ دیر سے ہی کھلتا ہے، مگر وہ حیران ہوا کیونکہ اس بار دروازہ جلدی کھل گیا۔ سامنے مدیحہ کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا، جبکہ مدیحہ اسے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو مدیحہ فوراً ایک طرف ہٹ گئی۔ ضرور، تشریف لائیے۔ اگر آپ زمین کی بات کرنے آئے ہیں تو… اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دکھاتے ہوئے بیچ میں ہی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ درمیان میں ہی بول پڑا۔ تسلی رکھیے، میں زمین کی بات کرنے نہیں آیا۔ مدیحہ کو نہ جانے ابھی تک زمین کی ہی فکر کیوں ہو رہی تھی۔ میں تو آپ کے والد سے معذرت کرنے آیا ہوں، وہ دھیرے سے بولا تو مدیحہ حیران رہ گئی۔ شاویز عالمگیر ایسا تو نہیں تھا، اس نے اس کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ تو بالکل برعکس تھا۔ شاویز عالمگیر اور معافی، اگر یہ بات شائستہ کو بتائی جائے تو وہ تو حیرت سے بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے دل میں سوچا تو مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ مدیحہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی آئی، جہاں ضعیف بابا نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ آپ کے والد کہاں ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے فوراً کمرے سے نکل گئی۔ شاویز عالمگیر مدیحہ کے والد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ مدیحہ بھی والد کے ساتھ آئے تاکہ وہ اس کے سامنے ہی ساری بات کر سکے۔ اس کا مقصد اس کے والد کو راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ مدیحہ کو راضی کرنا تھا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ میرے والد صاحب کو آپ پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا کہ زمین ہمیں بیچ دیں۔ یہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ جو چاہیں اس کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شاویز عالمگیر نے بڑے شائستہ انداز میں مدیحہ کے والد سے معافی طلب کرتے سارا مدعا اپنے والد پر ڈال دیا۔ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ دراصل میں خود پڑھا لکھا انسان ہوں، بس زمینوں سے لگاؤ کی وجہ سے ساری زندگی یہیں گزار دی اور باقی کی بھی یہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا یہی تو مشغلہ ہے، زمینوں پر کھیتی باڑی کرنا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، ایک ایک بیج بوتا ہوں، پھر فصل تیار ہوتی ہے۔ بس اسی لیے میں وہ زمین بیچنا نہیں چاہ رہا تھا۔ مدیحہ کے والد بڑے پرسکون اور شائستگی سے بولے۔ شاویز ان کی باتیں سن کر کچھ حیران ہوا، وہ خود بھی پڑھے لکھے انسان تھے۔ مدیحہ کے والد کے خیالات نے اسے متاثر کیا۔ مدیحہ کے دادا بھی اسے کافی دلچسپ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ ان کو متاثر کیے بنا آج یہاں سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ مدیحہ ایک کونے میں کھڑی ان سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ شاویز کی معافی نے اسے حیران بھی کیا اور سوچنے پر مجبور بھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلی اور چائے لے آئی۔ شاویز چائے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اس دن اس گھر سے نکلتے ہوئے شاویز کو پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ وہ مدیحہ کے دل پر اپنا وار کر چکا ہے۔ وہ مدیحہ کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے نکلی، شاویز جلدی سے اپنی گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ مدیحہ اسے دیکھ کر حیران تھی۔ شاویز نے جھک کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سلام پیش کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مدیحہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں آیا تو شائستہ سے بات کرنے تھا، مگر معلوم ہوا کہ وہ چھٹی پر ہے۔ آئی کیوں نہیں وہ آج؟ شاویز نے اپنی کزن کا ذکر کرتے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے آج وہ نہیں آئی۔ شاویز نے گہری سانس لے کر اداسی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ فوراً فکر مندی سے بولی۔ آپ کچھ دیر کے لیے میری بات سن لیں تو شاید میرا دل تھوڑا بہل جائے گا، وہ ڈرامائی انداز میں ذرا دھیمے لہجے میں بولا تو مدیحہ تھوڑی حیران ہوئی، مگر پھر خاموشی سے اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ دراصل بچپن کی منگنی توڑ کر شائستہ نے میرے دل پر بہت گہرا زخم دیا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتی تھی جتنا میں اسے چاہتا تھا، لیکن وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اگر مجھے پہلے یہ معلوم ہوتا تو میں اپنے دل میں اس کے لیے کبھی جگہ نہ رکھتا۔ شاویز جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔
मगर वो तो कहती है कि आप उसको पसंद नहीं करते थे। मदीहा ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ फैसले बड़ों की मर्जी से तय होते हैं और उनमें कोई दूसरी गुंजाइश नहीं रहती। तो जब बड़ों ने फैसला कर दिया था तो मैंने भी अपने दिल में उसे बसा लिया था। दिल से निकालना इतना आसान तो नहीं होता मदीहा। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मैं ही बचपन की मंगेतर को एक झटके से खींचकर बाहर फेंक दिया जाए। मुझे अफसोस है कि आपको इतनी बड़ी चोट सहनी पड़ी। वो अफसोस से बोली तो शाहवेज ने दिल पर हाथ रखकर सीट से टेक लगा ली। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो होगी जो इस जख्म पर मरहम रख देगी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर मदीहा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। आप फिक्र न करें, खुदा ने आपके नसीब में शाइस्ता से भी प्यारी और अच्छी लड़की लिखी होगी जो जल्द आपसे आ मिलेगी। वो दिल से दुआ देकर बोली तो शाहवेज आलमगीर ने बाआवाज़ बुलंद आमीन कहा। वो अक्सर मदीहा से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी जा पहुंचता। वो भी उसकी दुखी दिल की दास्तान सुन लेती। उसका दिल शाहवेज आलमगीर की तरफ से बेहद नरम हो चुका था। वो इतना बुरा भी नहीं था कि जितना सब लोग उसे बयान करते। उसने तो इसमें कोई अकड़ या घुमंड नहीं देखा था, बल्कि वो सीधा सादा नौजवान था जो शाइस्ता के हाथों अपना दिल घायल करवा चुका था और अब अपने जख्मों को भरने की कोशिश में था। वो अक्सर मदीहा के सामने गरीबों की मदद भी किया करता और सबके साथ नरम दिल और खंदा पेशानी से पेश आता। मदीहा के दिल में वो कब का घर कर चुका था। वो अक्सर कनखियों से उसका जायजा लिया करती। शाहवेज आलमगीर उसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने ऐसा नौजवान ना देखा था। उसकी यूनिवर्सिटी के हम जमात भी ना जाने किन शौखियों में गाड़ियां उड़ाए फिरते, जबकि शाहवेज आलमगीर तो बिल्कुल सादे मिजाज का नौजवान था। वो अक्सर उसके साथ कभी चाय पीने तो कभी आइसक्रीम खाने चली जाती। वो उसको ज़बरदस्ती ले जाता कि इस तरह उसके दुखी दिल को थोड़ा करार आ जाएगा। उसने उसे अपने माँ बाप की अलैदगी की दास्तान सुनाकर भी हमदर्दियाँ समेट ली थी। मदीहा का दिल उसके लिए हमदर्दी के जज्बे से लबरेज रहता तो वो चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेती। वो उसको अपनी ज़मीनों पर भी प्लाज़ा दिखाने ले गया। प्लाज़ा का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। उसने मदीहा को बताया था कि किस तरह उनकी ज़मीन बिल्कुल प्लाज़ा के बीच में आ रही थी। मदीहा ये सब देखकर कुछ चुप सी रह गई। शाइस्ता के बाद तुम वाहिद लड़की हो जिसने मेरे दिल को मुतासिर किया। तुम मेरा दिल ना तोड़ना मदीहा। इस दिल को पहले ही मेरे अपने कई बार कुचल चुके हैं। उसने मदीहा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मदीहा का दिल धड़क उठा। तुम मेरे दिल की हदों को छू चुकी हो मदीहा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो अपना हाथ फैलाए मदीहा के सामने बैठा था, जबकि उसका दिल धड़क धड़क के बेताब था। कहाँ वो एक मामूली किसान की बेटी और कहाँ वो शहर की मशहूर और अमीर सियासतदान का इकलौता बेटा। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं था। वो किस तरह उसकी मोहब्बत के इकरार का जवाब मोहब्बत से देती? मगर शाहवेज, वो झिझकते हुए बोली। शाहवेज ने आज उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने हमेशा से तकलीफ़ें उठाई हैं मदीहा। लोगों को मेरा तल्ख रवैया, मेरा घुमंड तो दिखाई देता है, मगर वो अजियतें दिखाई नहीं देती जो मेरे हिस्से में आई। वो लाचारी से बोला तो मदीहा का दिल उसकी एक एक बात से मुत्तफिक हुआ। उसका दिल चाहा वो इस बिखरे हुए नौजवान को समेट ले, उसके दिल के एक जख्म पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखे, उसका सर अपनी आगोश में रखकर उसकी आंखों से सारे दर्द लेकर अपनी आंखों में बसा ले। उसे इसकी दौलत और जायदाद से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो इसके जख्मों की परवाह थी। उसे शाहवेज आलमगीर के वो सारे दर्द चाहिए थे जो उसने अब तक सहे थे। वो इसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ लिखना चाहती थी। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने सामने फैली इस हथेली पर एक नज़र डाली। वो उसको मज़ीद दुख नहीं देना चाहती थी। वो ना बोलकर उसका दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैं हर एक कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी शाहवेज आलमगीर। वो उसकी मजबूत हथेली पर अपना नाजुक हथेली फैलाकर बोली। शाहवेज आलमगीर अपनी मंजिल के काफ़ी करीब था। जो वो चाहता था वो हो चुका था। मदीहा उसके लिए आसान टारगेट साबित हुई थी।
بھلا وہ کوئی منصوبہ سوچے اور اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے؟ ایسا کہاں ممکن تھا؟ اس کے باپ کی نظروں میں وہ سیدھا سادہ نوجوان تھا جسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر دراصل وہ تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ اگر وہ اپنا کارنامہ اپنے باپ کو سناتا تو وہ حیرت سے بے ہوش ہی ہو جاتے۔ وہ اپنی اتنی سی کامیابی پر ہی بے انتہا خوش تھا کہ اس نے مدیحہ کا دل اپنی طرف سے موم کر لیا۔ وہ اس کی محبت کو قبول کر چکی تھی۔ ابھی زمین اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی، تبھی وہ اس قدر خوش تھا۔ اپنی کامیابی کا جشن مناتا آگے کا منصوبہ سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اگلے قدم پر بھی کامیابی ضرور ملے گی۔ میں اس پروجیکٹ کو لے کر بہت پرجوش ہوں مدیحہ۔ یہ واحد پروجیکٹ ہے جو بابا کی نظروں میں میری اہمیت بڑھا دے گا، کیونکہ وہ تو آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ میں ان کے پیسوں پر بیٹھ کر مفت میں عیش کر رہا ہوں۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی ہی میری زندگی کی بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ مدیحہ کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے اسے اپنے پلازے پر لے آیا۔ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے شاویز۔ وہ تو ہر پل اس کے لیے دعا گو تھی، دل سے چاہتی تھی کہ وہ کامیابی کی ساری منزلیں بآسانی طے کر لے، مگر اس زمین کی وجہ سے کام روکنا پڑے گا یار۔ دراصل میں نے بابا سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ زمین خریدی جا چکی ہے، ورنہ وہ تمہارے بابا کو ایسے ہی تنگ کرتے رہتے اور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجا کر بولا تو مدیحہ کو اس پر پورا یقین ہوا۔ میں ابا کو منانے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں شاویز، وہ دھیرے سے بولی تو وہ چوکنا ہو گیا۔ نہیں مدیحہ، میں تمہیں ذریعہ نہیں بنانا چاہتا۔ وہ فوراً بولا، اتنا گھٹیا نہیں ہوں کہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو مدیحہ کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ تم فکر مت کرو، میں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں، یہ زمین مجھے ہی ملنی ہے، اور اس حوالے سے زمین میری ہو یا تمہاری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے امید کا سرا دے کر لوٹی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکلوتی تھی، ایسے ہی تو اس نے اتنا بڑا کھیل نہیں کھیلا تھا۔ وہ تو یہ بھی جانتا تھا کہ مدیحہ کا باپ یہ زمین مدیحہ کے نام لگا چکا تھا۔ اب جو کرنا تھا مدیحہ کو ہی کرنا تھا۔ میں نے بابا کو منا لیا ہے، وہ میری ضد کے آگے زیادہ عرصے تک نہیں ٹک سکے۔ مدیحہ نے اگلی ہی ملاقات میں اسے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مگر ابھی اپنی خوشی دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ مدیحہ، مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا، وہ دھیرے سے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا شاویز، تم فکر مت کرو اور کاغذات بناؤ، جہاں دستخط کرنے ہوں گے میں کر دوں گی، بدلے میں تم مجھے اتنی ہی رقم ادا کرو گے جتنی اس زمین کی اصل قیمت ہے۔ اس کا دل خوشی سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ وہ اپنی جیت کا جشن دل ہی دل میں منا رہا تھا۔ اس نے اپنے وفادار ملازم کو پہلے ہی کاغذات کی تیاری میں لگا رکھا تھا۔ پہلے ہی زمین کی وجہ سے پلازے کے کئی کام رکے ہوئے تھے۔ وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مدیحہ نے اگلے دن ہی کاغذات پر دستخط کیے تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ زمین اس کی ملکیت ہو چکی تھی۔ اس کا رکا ہوا کام جلد ہی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ وہ خوشی خوشی کاغذ لپیٹتا جیب میں رکھ کر پلٹ چکا تھا۔ اس کا کام تو ہو چکا، اب وہ مدیحہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شاویز، مدیحہ نے اسے پکارا تو وہ رک گیا۔ شکریہ نہیں بولو گے؟ تمہارا اتنا بڑا کام کر دیا، اس نے مذاق کے طور پر کہا تو اس نے پلٹ کر مدیحہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ کس قدر بے وقوف تھی، اتنی آسانی سے اس کے شکنجے میں پھنس گئی تھی۔ اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بس مدیحہ، اب تمہارا کام ختم ہو گیا، اس لیے میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے جانے دو، میری زندگی میں بہت سے ضروری کام ہیں، چلتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو مدیحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مدیحہ کا ذہن فوراً کھٹک گیا تھا۔ ایک لمحے میں ہی شاویز عالمگیر کا بدلا ہوا رویہ اسے دکھائی دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی، وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ تم جیسی معمولی لڑکی سے شاویز عالمگیر کبھی محبت نہیں کر سکتا،
तुम कब हो मेरे लायक? शावेज आलमगीर गुर्राते हुए बोला तो मदीहा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो साकित नजरों से उसे देख रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? मदीहा ना जाने किस खुशफहमी का शिकार थी। उसे तो लगा था कि शावेज आलम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उसने इजहार भी किया था और इकरार भी। मदीहा ने उसकी हर बात पर दिलो जान से यकीन कर लिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शावेज आलमगीर उसे इतना बड़ा धोखा देगा। ये सब तो गोया एक ड्रामा था जो सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए रचाया गया था। मदीहा हैरान थी कि सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। शावेज के साथ गुजारे हुए लम्हे, उसके किए गए वादे और खाई गई कस्में सब झूठ था, नाटक था। वो नहीं जानती थी कि ये सब महज धोखे की बुनियाद पर था। मदीहा के चेहरे पर बेयकीनी के आसार वाज़ेह थे। वो खामोशी से खड़ी देख रही थी। शायद ये सब मजाक हो, शायद वो अभी हंसकर कह दे मैं मजाक कर रहा था, तुम गलत समझी। शायद वो माजरत करे, मगर शावेज तो दूर खड़ा उसकी बेबसी पर हंस रहा था। मदीहा की मासूमियत को अपने कदमों तले रौंदने वाला शावेज आलमगीर इस जज्बे को कभी समझ ही नहीं सकता था जो मदीहा ने खालिस मोहब्बत के साथ महसूस किया था। उसकी मोहब्बत, उसका खलूस सब बेकार गया था। वो मुंह पर हाथ रखे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश में थी कि मोहब्बत धोखा नहीं होती। धोखा तो मोहब्बत करने वाला देता है या वो देता है जिससे मोहब्बत की जाए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ एक जमीन की खातिर? वो कांपती हुई आवाज में बोली थी। जब सीधे तरीके से मुंह मांगी कीमत पर भी जमीन बेचने को तैयार नहीं थे तो फिर कोई ना कोई तरीका तो अपनाना था ना। वो संगदिली की आखिरी हद पर खड़ा था। मदीहा को उस जमीन का अफसोस नहीं था, उसे तो इस हरजाई की बेवफाई का गम था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इसे यूं धोखा देगा। शाइस्ता ने उसे समझाया भी था कि इस पर एतबार ना करो, वो इस काबिल नहीं, मगर इसने एतबार किया था। वो जेब से कागजात निकालकर उसके चेहरे के सामने लहरा चुका था। वो वहीं जमी खड़ी थी, उसमें सकत नहीं थी कि वो एक कदम भी उठा सकती। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसने बेहद एहतियात से मोहब्बत की राह पर कदम रखा, मगर उसके हाथ रुसवाई के सिवा कुछ नहीं आया। उसकी पहली मोहब्बत ही बुरी तरह नाकाम हो गई। शावेज आलमगीर अपनी दुनिया में मगन था। उसके प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका था। उसे मालूम हुआ था कि मदीहा और उसके घर वाले अगले ही दिन गांव छोड़कर जा चुके हैं, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका मकसद पूरा हो चुका था। चाहे वो गांव छोड़कर जाएं या शहर, उसे इनसे कोई लेना देना नहीं था। शावेज अपनी दुनिया में मस्त रहता। हवेली में रहते हुए वो दिन रात प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत अहम हो चुका था और अब तो उसे इससे खास उनसियत महसूस होने लगी थी। उसे किसी और चीज से कोई सरोकार नहीं था। काफी अरसा हो चुका था, ना वो अपनी माँ से मिलने गया और ना ही शहर जा पाया। हवेली में ही वक्त गुजार रहा था। अम्मा भी उससे सख्त नाराज थी, क्योंकि जब से इसने उनसे बदतमीजी की थी तब से उन्होंने इसे बात करना छोड़ दिया था। शावेज जानता था कि वो गलत था, लेकिन जैसे उसे किसी की परवाह ही न रही हो। वो अजीब संगदिल और कठोर बन चुका था। जब उनमें से किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं उनकी क्यों करूं? उसकी मनफी सोच उसे सबसे दूर कर रही थी। बी अम्मा से माजरत करने का भी उसने कभी सोचा तक नहीं था। वो अपनी जिद और गरूर के जाल में ऐसा फंसा था कि अपने करीबी रिश्तों की अहमियत समझने से कासिर था। कैसे हो बरखुरदार? हवेली में ताया को देखकर वो हैरान हुआ। जी ठीक हूं, वो धीमे लहजे में बोला। शाइस्ता से मंगनी टूटने के बाद ये उसकी उनसे पहली मुलाकात थी। उसके दिल में इनके खिलाफ ढेरों शिकवे थे, मगर वो इस मौजू पर बात करना नहीं चाहता था। वो इनका सामना भी नहीं करना चाहता था, जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर मंगनी तोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाया। इसको सिर्फ इस बात का दुख था कि मंगनी उन्होंने तोड़ी थी। वो खुद तोड़ता तो उसे कोई रंज ना होता।
प्लाजे का काम देख कर आया हूं मैं। बहुत शानदार काम करवाया है तुमने, वो उसे सराहते हुए बोले तो वो चुप रहा। आपको तो मुझसे ऐसी तवक्को नहीं होगी ताया जी, वो दिल ही दिल में बोला। मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुझसे नाराज हो। वो उसे चुप देखकर बोले तो उसने एक शिकवा कना निगाह उनके चेहरे पर डाली। आपको कहाँ परवाह मेरी नाराजगी की ताया जी, वो आपकी बार भी दिल में ही बोला। चलो यार, माफ कर दो मुझे। मैंने वही फैसला किया जो मुझे बेहतर लगा, और ये फैसला मैंने अकेले नहीं किया, तुम्हारे बाप की भी पूरी रजामंदी शामिल थी। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश ही ना रहते तो फायदा क्या था तुम्हें एक साथ बांध कर रखने का। वो वही सफाइयां पेश कर रहे थे जो उसके बाप ने की थी। उसने तो ताया से कोई शिकवा नहीं किया था, ना ही उसे कोई सफाई देने की जरूरत थी। मैं चलता हूं, बहुत थका हुआ हूं, नींद आ रही है। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अम्मा भी उसको देखकर रह गईं। वो इन्हीं की गोद में पला था। बचपन में वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मगर जब से बड़ा हुआ था न जाने इसके तेवर क्यों बदल गए थे। वो हर वक्त सबसे नाराज रहता। अच्छा, ये शाइस्ता की शादी का कार्ड है। मेरी तरफ से तो अम्मा और तुम और तुम्हारे बाप के सिवा कोई है नहीं। मुझे दिली खुशी होगी अगर तुम हमारी खुशी में शामिल हो गए। वो बड़े खुलूस से उसे अपनी बेटी की शादी में बुला रहे थे, जबकि वो जख्मी नजरों से उन्हें देख रहा था। बेटी से मंगनी तोड़कर अब उसकी शादी का कार्ड पकड़ाकर न जाने वो क्या साबित करना चाहते थे। उसने बेदिली से कार्ड पकड़ा तो वो खुश हो गए। वो कार्ड मेज पर डालकर कमरे से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसकी बेचैनी अपने उरूज पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों है। शाइस्ता की शादी कभी ना कभी तो होनी ही थी। ये बात तो तय थी कि वो इसके लिए नहीं बनी थी और ना ही वो शाइस्ता के लिए बना था। वो शाइस्ता से किसी किस्म का जज्बाती लगाव भी नहीं रखता था, फिर भी न जाने क्यों एक अजीब बेकरारी उसे घेरे हुए थी। वो खुद अपनी बेचैनी की वजह समझने से कासिर था। कब से वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे सुकून क्यों नहीं आ रहा। ये बात तो साफ थी कि बेचैनी की वजह शाइस्ता की शादी नहीं थी, लेकिन फिर ऐसी कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर मुसलसल चुभ रही थी। वो जितना ज्यादा सोचता था उतना ही उलझता चला जाता। उसके दिलो दिमाग के दरमियान एक कश्मकश डारी थी और वो इस बेसुकूनी की जड़ को समझने में नाकाम था। बाबा के कई बार कहने पर वो बेदिली से शाइस्ता की शादी में शरीक होने की गर्ज से शहर चला आया। ताया जी उसको देखकर बहुत खुश हुए। वो शाइस्ता का सामना नहीं करना चाहता था। वो खुद ही उसे ढूंढती हुई चली आई। मैंने इसे पहले ही समझाया था कि सांप को दूध ना पिलाए, मगर उसने तो ठान रखी थी एतबार करने और धोखा खाने की। वो जहरीले लहजे में बोली तो वो एकदम उठ खड़ा हुआ। तमीज से बात करो, तुम्हें मालूम भी है तुम किससे बात कर रही हो। अच्छी तरह मालूम है। वो इसके गुस्से को खातिर में ना लाई। एक धोखेबाज से बात कर रही हूं जो जमीन के एक हकीर टुकड़े की खातिर एक मासूम के दिल से खेल गया। तुमने हमारे खानदान की तो क्या लाज रखनी थी, अपनी ही इज्जत कायम न रखी। तुम हमारे खानदान के लगते ही नहीं, क्योंकि हमारे खानदान में तुम्हारे सिवा कोई इतना नहीं गिर सकता। उसे मालूम नहीं था कि वो इस पर इस कदर गुस्सा थी, वरना वो कभी भी ना आता। उसने ठान रखी थी कि आज अपना सारा का सारा गुस्सा उतार लेगी। दोबारा ना जाने कभी मौका मिले या ना मिले। उसे शाहवेज आलमगीर की औकात याद दिलाना बेहद जरूरी था। शाइस्ता, अपनी जबान को लगाम दो। वो अपने गुस्से पर काबू रखता दबे लहजे में बोला। क्यों, सच सुनने का हौसला नहीं तुम में? मगर अफसोस यही कि सच है शाहवेज आलमगीर, तुमने एक लड़की के जज्बात से खेलकर उसकी जमीन पर कब्जा करके अपने ख्वाबों की तकमील करने की कोशिश की है। तो ऐसे इंसान को क्या कहना चाहिए? इज्जत के काबिल तो मैं नहीं समझती तुम्हें। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए रत्ती बराबर इज्जत कभी थी ना, अब वो भी नहीं रही। वो उसे तरस भरी नजरों से देखकर बोली थी। इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब इधर बैठे बैठे मेहमानों की वजह से चुपचाप सह गया।
अच्छा है, वो तुम जैसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की बजाय आगे बढ़ रही है, किसी अच्छे इंसान से शादी कर रही है। वो आगे बढ़ा ही था कि शाइस्ता का जुमला सुनकर रुक गया। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी होगी। वो बेइंतहा गुस्से में शाइस्ता के घर से निकला। अब मजीद एक लम्हा भी यहां गुजारना उसके लिए काबिले कबूल नहीं था। एक लम्हा भी यहां गुजारना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मदीहा इतनी जल्दी उसकी मोहब्बत को भूल जाएगी। उसने इसके साथ कितने लम्हे गुजारे थे, कितने वादे किए थे और कितनी कस्में खाई थी। वो उसे अपनी मोहब्बत के जरिए जीत चुका था और अब वो यूं इसे अपनी जिंदगी से निकालकर आगे बढ़ रही थी। वो जानता था कि कसूरवार वो खुद था, कि उसने ही उसे धोखा दिया था, लेकिन फिर भी वो ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इतनी जल्दी इसे भुला देगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर कुचल रहा था कि अपनी मोहब्बत को उसने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। उसे अपनी बेचैनियों की वजह बखूबी समझ आ गई। वो गुस्से में सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता फिर रहा था। उसका दिल चाह रहा था अभी मदीहा के घर जाए और उससे पूछे कि वो क्यों किसी और से शादी कर रही थी, मगर वो किस हक और हैसियत से यह सवाल करता। उसने खुद ही मदीहा का दिल बुरी तरह तोड़ा था। इसके पास कोई हक नहीं था कि वो उसकी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाए। मदीहा को पूरा हक था कि वो अपनी जिंदगी में किसी को भी शामिल करे, लेकिन ये ख्याल ही इसे बेचैन करने के लिए काफी था कि वो किसी और की जिंदगी में शामिल होने जा रही थी। मदीहा के सामने तो वो अपने दिल में होने वाले दर्द को शाइस्ता से मंगनी टूटने का दर्द कहकर उसे बेवकूफ बनाता रहा। अब तो सच में उसके दिल में दर्द उठ रहा था। वो समझने से कासिर था कि ये बेचैनी, ये तड़प असल में मदीहा की मोहब्बत में गिरफ्तार होने का नतीजा थी। ड्रामा करते करते ये हकीकत बन चुकी थी कि वो मदीहा की मोहब्बत का तमन्नाई हो चुका था। उसे खुद अपनी इस कैफियत पर हैरत हो रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। उसके लिए मोहब्बत हमेशा झूठा और मतलबी जज्बा रहा था। लेकिन अब कई दिनों से वो अपने दिल की बेचैनी को झुठलाता रहा, अपने जहन से मदीहा के ख्यालात को मिटाने की कोशिश करता रहा। वो आज तक खुद से मदीहा की मोहब्बत का इकरार ना कर पाया था। मदीहा की मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी आंखों की चमक हर लम्हा इसके जहन पर छाई हुई थी। वो बार बार उसकी तस्वीर को अपने जहन के पर्दे से हटाने की कोशिश करता, मगर हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हो जाता। उससे हमेशा के लिए दूरी का सुनकर रह ना पाया। गाड़ी दौड़ाते वो अपने आप से उसकी मोहब्बत का एतराफ़ कर चुका था। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं मदीहा को किसी और का होने नहीं दे सकता, वो बेख्तियार बड़बड़ाया। उसने तेजी से गाड़ी का रुख मोड़ा ताकि मदीहा के घर जा सके, मगर अचानक एकदम ब्रेक लगानी पड़ी। उसे याद आया कि उसे तो मदीहा के घर का पता ही नहीं मालूम। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो गांव से शिफ्ट हो चुके हैं, मगर कौन से शहर में किस जगह थे उसे कुछ मालूम नहीं था। वो मायूस हुआ। मदीहा का पता कैसे ढूंढेगा? शाइस्ता उसके खिलाफ नफरत में तो बेपनाह इजाफा हो गया था। वो तो उसे कानों कान खबर भी ना लगने देती कि मदीहा कहाँ थी। फिर वो क्या कर सकता था? वो गुस्से में एक बार दोबारा गाड़ी दौड़ाए शाइस्ता के घर की तरफ रवां दवां था, चाहे उसे शाइस्ता की मिन्नतें करनी पड़े या उसके पांव पड़ने पड़े। वो मदीहा के घर का पता जरूर लगवा कर रहेगा। पुख्ता इरादा करते उसने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई। अचानक ही तेज रफ्तार ट्रक न जाने कहां से आया, उसे मालूम ही ना पड़ा। उसने ब्रेक लगाने की और गाड़ी को काबू में करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। एक लम्हा ही लगा था और उसकी गाड़ी सीधे ट्रक से जा टकराई। उसे होश आया तो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी मां परेशानी से उसका हाथ पकड़े बैठी थी। बाबा भी सामने खड़े उसके चेहरे पर नजरें जमाए परेशान खड़े थे। वो दोनों को हमेशा यूं ही एक साथ तो देखना चाहता था, मगर आज से पहले उन्हें इकट्ठा ना कर पाया। अगर उसे मालूम होता कि वो इसकी बीमारी पर इकट्ठे होंगे तो वो बहुत पहले गाड़ी कहीं टकरा देता।
اس نے پلٹ کر کمرے کی دوسری جانب نگاہ دوڑائی۔ تایا کے ساتھ شائستہ شرمندہ چہرے کے ساتھ موجود تھی۔ بی اماں تسبیح کے دانے تیزی سے گراتی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ سب کے پریشان چہروں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ سب اس سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اماں بی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پوچھا تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں اماں بی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے خفا ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اب ناراض نہیں ہوں، معاف کر دیا۔ اچھا موقع تھا، اسے سب سے ہی معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ اس نے سب کا کسی نہ کسی طرح دل دکھایا تھا۔ تایا جی سے معافی مانگ کر اس نے دل کو سکون ملا۔ شائستہ، میں مدیحہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شائستہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ بستر سے چھلانگ لگا کر اترا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، مگر میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، اسے منانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی منتیں کر رہا تھا۔ شائستہ نے اس کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مدیحہ بھی اس کے اس روپ سے ہی متاثر تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتی تھی۔ اچھا تم لیٹ جاؤ، ابھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں اٹھنے سے۔ وہ زبردستی اسے بستر تک لائی۔ وہ مدیحہ کا ہاتھ پکڑے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جانتا ہوں معافی کے قابل نہیں، مگر تمہیں معاف کرنا ہی ہوگا۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چہرہ مزید جھکا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدیحہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے۔ وہ شائستہ کے کہنے پر اس سے ملنے اسپتال چلی آئی تھی اور اسے یوں پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر اس کے دل میں جیسے سوئی سی چبھی تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ شاویز نے اس کا دل بری طرح توڑا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے دل سے اس کی محبت نہ نکال پائی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا مجھے ایک موقع مل سکتا ہے یار؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو وہ پگھل گئی۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتی شاویز، تم بہت قیمتی ہو میرے لیے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ شاویز کی جیسے ساری بے چینیاں اور پریشانیاں یک لخت ختم ہوئی تھی۔ اس کے دل کو وہ سکون ملا تھا جس کی تلاش میں وہ ہمیشہ سے تھا۔ وہ دونوں آنسو بہا رہے تھے، تبھی شائستہ کمرے میں آئی۔ او ہو لیلا مجنوں، اب بس کرو اور میری شادی میں بھنگڑے ڈالنے کی تیاری کرو، یہ رونا دھونا مزید نہیں چلے گا۔ وہ انگلی دکھا کر بولی تو مدیحہ نے فوراً اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ ہاں مگر وہ تمہارا شتر مرغ ہے کہاں؟ اس کا سہرا میں ہی باندھوں گا۔ وہ شرارت سے بولا تو شائستہ نے غصے سے اسے گھورا۔ کچھ ہی دیر میں ان تینوں کے کہے کمرے میں گونج گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔